मैम आई हैव अ डाउट अगेन. डाउट बाद में ले ओके मैम. About new haircut that I tried on. This is the brand Bare. because we need to continue with मैम देवन का माइक ओपन है. मीट लिखना है तो अपने बुक में लिखो बेटा, यहाँ पे मत लिखो. मैं वो वीडियो को हिला रहा हूँ. Sanya, a 13-year-old curious city girl studying in class 8. Kabir, Sanya's 14-year-old brother, who helps her contemplate things and perform various activities. Okay, ये पूरे characters का introduction हम बाद में कर See, लेंगे. there is so much greenery all around. Mummy, it feels so good here. There are so many trees all around. Back home, we see much lesser trees and plants. I have come here several times earlier also, and have stayed here for a few days too. In those days, it used to be even greener. Now to make shops and houses, many trees have been cut. Yes, earlier there were many trees near our house too. Gradually they have all disappeared. Earlier, we could see so many birds around, but now only a few can be seen around. Wonderful Isn't it? example is sparrow. Okay, sparrow generally you will not find out in Ahmedabad, and specifically this concrete city. But yes, before it was there, and all of them are just right now we can say not completely When there are no endangered, plants and trees not even around, extinct, how but would yes, the birds stay? There are so many trees and plants in Chachaji's village. That's why we also see many birds. Bhaiya, what worries me is that if they continue cutting trees here like this, then this forest too may get completely ruined. Isn't this wrong, friends? Be it for making furniture, for making houses, or even as firewood, we are continuously cutting trees to satisfy our needs. What do you think about this? मैम एक चीज बोलूं. yes, beta. See, this all things we are studying. I think standard fifth, right? Not only in this EVS, SS, you are studying it. Every time we are repeating, every time when we are getting environmental day or our planet Earth day or whatever day, okay, it's related to our environment. We are doing so many things. We are discussing this and that. We should do this and that, okay. But the thing is that we know the solution. We know the problem, and we know the solution also. The only thing is that we need to apply it practically, है ना? Whatever we will discuss, we know the importance. बहुत बार हमने उसका रट्टा लगाया है, पता ही है कि इम्पोर्टेंस क्या है, और उसका इम्पोर्टेंस ये भी पता है कि अगर वो नहीं होगा तो क्या होगी हमारी हालत, वो भी पता है. बट और उसका सोल्यूशन भी पता है. कोई भी एनवायरमेंटल, कोई भी एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को पकड़ लो, ठीक है, उसका एट द एंड फाइनल सोल्यूशन यही आता है. मोस्ट ऑफ द आंसर्स यही आता है कि प्लांट ट्रीज, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. फाइनल सोल्यूशन यही है. बट बात ये है कि वी आर नॉट प्लांटिंग, है ना. जो बात कर रहे हैं उससे हम उल्टा कर रहे हैं, हम काट रहे हैं उसको. Sanya, do you नहीं मैम, know इस वन at महोत्सव times को the हमने उगाया forests था catch पेड़. fire too? मैम यस. मैम फिर ऐसे एक And कपल है sometimes मैम, even nat- जो मैम एक जगह स्पेसिफिक मेरे को जगह नहीं पता मैम. वहाँ पे कपल मैम जो आर्टिफिशियल तरीके से मैम जो ट्री उगता है मैम उसको मैम वो एक चेयर का शेप ले लेता मैम. ले लेता है मैम, अंडे का शेप हाँ, होता है मैम, हाँ, अंडे जैसा. हाँ, उसमें से फिर हाँ. मैम पेड़ उगता है मैम.
उसमें ना ऐसा चिप होता है जिससे अगर परिवार वालों को उसको मिलना भी हो ना तो जीपीएस से देख सकते हैं कौन सी कबर है उसकी। ठीक है। Natural Thank you for calamities sharing, like Vida. floods and But earthquakes right now we cause are not discussing destruction. it. This means that even natural factors can destroy forests, isn't it? Sanya, are you aware of the problems that can occur if forests are destroyed? Yes, Mummy. Without plants, the oxygen levels will go down and it will become difficult for us to breathe. Air pollution will also increase. Absolutely. Even the carbon dioxide levels in air will increase if trees are cut. Do you know what will happen if it increases drastically? Bhaiya, what will happen? Sanya, you must have read about how plants make their own food. Come on, let's see how much you remember about it. So tell me, which gas do plants need to make their food? Plants need carbon dioxide. Very good, Sanya. Do you think what would happen if these plants that use carbon dioxide disappear? Bhaiya, then the levels of carbon dioxide will keep on increasing. Yes, an increase in carbon You know dioxide that levels will trees raise are the green lungs of temperatures our on Earth. environment, right? So they are going to Oh, filter so that pollution, is this about noise global warming, pollution, air isn't it? pollution. Even they can absorb that some of the pollutants from the underground water also. It's going to cool down the temperature also, right? You know the different advantages. Advantages list it's long, right? But if you are going to cut, you know that what will happen. You know that reforestation and deforestation. Deforestation means what? We are going to cut off all those or chop off all On a those. large scale. एंड रिफॉरेस्टेशन करेक्ट रिफॉरेस्टेशन यानी फिर से उसी फॉरेस्ट को वहीं पे डेवलप करना स्टार्ट करना बट कहाँ पे जैसे एक अच्छा सा किसी ऐसी एग्जांपल जगह है पे अगर कोई डेजर्ट समझ लो कि एक बॉर्डर पे जहां से डेजर्ट स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो ऐसी जगह पे अगर हम प्लांटेशन स्टार्ट करेंगे तो वो डिजर्ट को हम आगे बढ़ने से रोक पाएंगे है ना बट वहां पे ज्यादा केयर की जरूरत होगी क्योंकि वहां पे वो एरिया कैसा है बैरन लैंड है बैरन लैंड पे किसी चीज को ग्रो करना इज डिफिकल्ट थिंग right global warming is example of that part only I have read about it. Yes, you are right. Chacha ji, you once told us that the roots of the crops and plants absorb water from the soil. But if there are no trees, there will be no moisture in the soil too. And this will cause a lot of problems. Isn't it, Chacha ji? Absolutely. This will destroy the fertility of soil due to low water. Come, this is what let me show you. scarcity of water that we can see here है ना dryness सूखा जिसको बोला जाता है हिंदी में right if water is not Drought. there you can see that the layers right drought is also another word so what is a drought exactly that moisture or the water present in that soil will just completely dry out है ना क्योंकि ना तो rainfall time पे हो रहा है ना ही sufficient amount में हो रहा है so in that case whatever water is there जो भी अंडरग्राउंड पानी था वो ऑलरेडी हम लोग वहां से पुल कर चुके हैं एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं राइट सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन जो भी सॉइल है क्योंकि धीरे धीरे ये गर्मी भी बढ़ रही है ये पानी भी ऑलरेडी वहां पे इवेपोरेट हो चुका है तो अब सॉइल कैसे हो जाएगी पूरी की पूरी ड्राई राइट और इनफर्टाइल फर्दर यू कैन नॉट ग्रो एनीथिंग देयर Look at this soil. There are no trees or plants in this soil. On the other hand, in the other soil there are some plants. Now trying putting some water rapidly in these soils and see what happens. Oh, see how the water wears away the soil as it flows. But the soil that had plants growing did not flow away with the water. So does this mean that the roots of the plants hold the soil together even in strong winds? Yes, you're right, Sanya. So this means if we plant more trees, the soil will retain moisture and water or air will not be able to wear away the soil. Friends, this is called soil erosion. We had so read about erosion it. means what erosion means it will start degrading
मीन्स इरोशन से ही जनरली क्या होता है, सॉइल बनती है, राइट, दैट वी ऑलरेडी सीन इन कोल एंड पेट्रोलियम एंड 7th स्टैंडर्ड में भी आई थिंक आपने स्टडी किया है, 6th में भी, कि सॉइल बनती कैसे, कि बड़े बड़े स्टोन्स पहले ग्रेवल्स में, छोटे कंकड़ में टूटते हैं, फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉइल में, राइट। पर यहाँ पे सॉइल इरोशन यानी क्या, कि फ्लड के साथ अगर कुछ पोर्शन सॉइल का बह जाता है, राइट, सो यू विल सी दैट जनरली वो कौन काम करता था उसको होल्ड करने का, ट्रीज, उसके रूट्स उसको होल्ड करके रखते थे। बट अब ट्रीज ही नहीं रहे तो ये सॉइल भी बारी बारी से वहां पे इरोड यानी इरोशन होके वो कहाँ पे बह जाएगी, एट द एंड ओशन, राइट। तो मेजर पोर्शन वहां पे खाली रहता है। In class 7, तो मैम प्लांट Soil erosion means displacement. इंटरडिपेंडेंट है ना एक दूसरे के, सॉरी, सॉइल एंड मैम सॉइल एंड प्लांट दोनों इंटरडिपेंडेंट है ना एक दूसरे के ऊपर। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो हमने एक तो सबसे पहला क्या देखा एग्जांपल, सॉइल ड्राउट जो आपने बोला, राइट बेटे, ड्राउट यानी क्या, सूखा, क्यों होता है वो, क्योंकि बिल्कुल मॉइस्चर ही नहीं रहा, राइट, मॉइस्चर नहीं रहा, फिर आप देखोगे कि बारिश भी नहीं गिर रही है, अंडरग्राउंड वाटर जो था वो ऑलरेडी हमने लोगों ने पूरा निकाल लिया है, सो इन दैट केस एक वो हो गया। सेकेंड है, ये जो ट्रीज है उनका काम क्या है, होल्ड करके रखते हैं, एक बेस मटेरियल है, ठीक है, तो वो सॉइल के मॉलिक्यूल्स वहीं पे होल्ड होके रह जाएंगे, बट अब वो भी नहीं रहे, ओके, तो ये दोनों उसकी एडवर्स इफेक्ट हो जाएगी। of particles in वैसे भी मैम uppermost layer आजकल of यस बेटा, मैम जो इक्विवेलेंट बारिश नहीं होती। मैम जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैम और रूट मैम जो रूट है मैम वो बाम्बू की होती है। यस, बहुत ही ज्यादा हाँ और मैम, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है, और जिसको आप बोलोगे ना कि वो एक्चुअल में जब जमीन से ऊपर उठता है ना, उससे पहले वो कितने साल तक नीचे रहता है, और जब वो ऊपर उठता है ना कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्दी, यानी बाकी के ट्रीज और प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, ग्रेजुअली एंड स्लोली, ये वाला जो होता है वो बहुत टाइम अंडर, यानी कि अंडरग्राउंड जमीन के अंदर ज्यादा टाइम लेता है। उसके ऊपर से बहुत मोटिवेशनल चीजें भी बनी है, ठीक है, कि बेम्बू का एग्जाम्पल लेके कि हमेशा मैम, उसकी तरह बनो। हाँ बोलो, मैम हमारी सोसाइटी में कितना बहुत मैम सारे बोलते हो, कितना मैम मैम मैम, मैम, तो हम अब क्या बोलो। बोले आपको, क्या अरे बोले? मैम, बोल दो, आप सीधा आंसर बोल दो, मैं ये बोल रही हूँ। मैम मेरा और एक जब डाउट था। डिस्कशन चल रहा होता है, डिस्कशन चल रहा होता है, तब भी आप कंटिन्यूअसली मैम मैम कर रहे होते हैं, वो क्वाइट इरिटेटिंग हो जाता है बेटा। मैम मैंने फिर वो बहुत टॉपिक बार ये रिपीट किया है कि एक बार कोई भी एक को बोल लेने दो, आधर आपके क्लासमेट्स बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, किसी एक का खत्म हो जाने दो, है ना, बस मेरा यही पॉइंट है। वो तो बट ऑब्वियस है कि आप मैम ही बोलोगे, बोलो। मैम मेरा एक डाउट था, मैम ये बेम्बू ऐसे सॉइल के अंदर बहुत दिनों तक नीचे क्यों रहता है? वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो बाकी के पास नहीं है, ठीक है। soil by water. Sanya, do you know it is because of deforestation that calamities like floods and drought occur? Yes, Sanya, deforestation affects the rainfall also. It reduces the rainfall. Bhaiya, on one hand, deforestation reduces rainfall and on the other hand, it causes floods. How is this possible? Friends, can this also be related to absorption of water by the soil? What do you think about this? Sanya, what are you thinking? Bhaiya, I'm wondering if deforestation is such a Okay, big now what is problem, then reforestation? we must find This was some about solutions. deforestation and reforestation, right? Now, So, what is a did you find reforestation? any solution? Reforestation, once again, I will Bhaiya, repeat that, we can- yani we are once again just planting all those trees, है ना। कई बार ऐसे भी होता है कि अगर कोई बड़ा ट्री, सपोज अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितने भी कंट्रीज है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, वो पूरे के पूरे ट्रीज को कट नहीं कर देते और उसको फिर उसकी वुड या जो भी लकड़ी है उसको आगे यूज करने के लिए नहीं ले लेते। वो क्या करते हैं, अगर उनकी सड़क में बीच में अगर कोई ट्री आ रहा है ना, तो वहां से उसको किसी और जगह पे जाके फिर से प्लांट करेंगे, है ना। तो ये भी तरीका है, पर जनरली हम क्या करते हैं, 4 लेन 6 लेन के बड़े बड़े रोड बनाने के चक्कर में हम वो सारे ऑलरेडी, आप देखोगे अहमदाबाद ही अच्छे से एग्जाम्पल है बेटा, और तो क्या एग्जाम्पल ले हम, ठीक है, ऑलरेडी वो ग्रीनरीज यहाँ पर से पूरी जीरो हो चुकी है, राइट। ये एक पार्ट मैम हो जो गया। आपने बोला ना वो वाला जो मशीन मैम जो पूरा हटा लेते हैं मैम, मैम वो आई थिंक सो जापान में सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ था मैम, और फाउंड भी वही हुआ था। राइट, जापानीज मैम कंट्री, साइंस है, हाँ मैम।
हम डायरेक्ट मैम वो रूट से जापानीज ही मैम निकाल ये देते सब हैं, करते हैं। हम डायरेक्ट वो रूट Japanese, से Korean, निकाल के फिर उनको निकालते अपने एनवायरमेंटल, हाँ सही है बेटा, सही है। हैं। मैम मैंने Okay, एक बार अगर- बोला था ऐसा। हाँ एक्चुअली कोरिया, जापान एंड चाइना, चाइना को हम बाद में रखते हैं, ठीक है, बट अगर हम जापान को देखें ना, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उन्होंने अपना कल्चर, एनवायरमेंट, जो भी चीज नेचुरली हमें मिली है, जो डायरेक्टली हमें उससे रिलेट करती है ओरिजिनल हमारे वर्जन को, ठीक है, ना कि बहुत ही ज्यादा एडवांस वर्जन को, वो अभी भी वहीं पे जुड़े हुए है ना, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बट उसके सामने वो किसी चीज को वहां पे कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, राइट। तो ये बात हो गई कि कैसे वो चीजें खत्म हो रही है और उसकी एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकती है, बट हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं, राइट, टू कंजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व, यानी आपको एक चीज पता है कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जनरली होता क्या है कि वहां पे वो एरिया से किसके लिए वो रेस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ वो एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, राइट। वहां पे जाके आप, पहले ये चीजें बहुत ही कॉमन थी क्या, कि जाके किसी जगह पे किसी एनिमल को सिर्फ अपनी हॉबी के लिए हंट करना, है ना, शिकार पे जाते थे, फिर उसका हेड रखना अपने पैलेस में वगैरह। सो दैट वी कैन नॉट डू दैट। अगर वहां पे इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में वो चीजें होती है तो वो बोला जाएगा क्या, इलीगल एक्शन, राइट। इलीगल सलमान एक्शन, खान के अगेंस्ट लिया था। हाँ वो राइट, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। डियर के केस में, है ना, जो चिंकारा एक टाइप के डियर डॉग्स, राइट, होते हैं। ओके, तो ये हो गया यहाँ तक पहले कि कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, डिसर्टिफिकेशन, ड्राउट्स, राइट, फ्लड, सॉइल इरोशन। डिसर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, दैट ग्रेजुअली फर्टाइल सॉइल विल गेट कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड या फिर डिजर्ट, उसको क्या बोलोगे, डिसर्टिफिकेशन। मैम एक और चीज बोल सकता हूँ, को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्वेश्चन है बेटा, बोलो। मैम नहीं मैम कुछ मैम बोलना है ना मैम, जो डेजर्ट होता है मैम, वो मैम किसी मैम बैरन मतलब कि ना, वो पहले से बोलते कि डेजर्ट की जगह एकदम नदी बहती थी, एकदम हरा भरा था, फिर अचानक से वो डेजर्ट कैसे बन जाता है? आप ही वो बता दो वैलीज बेटा में कैसे होता बन है, जाता है, वो कैसे बन वैलीज में जाता नहीं है, होता। मतलब हाँ बोलो। मैम ऐसा तो सेम टू सेम वैलीज में नहीं होता मैम। मैम जो वी हाँ टाइप होते हैं मैम उसमें मैम, हाँ, क्योंकि बहुत पहले सारे वहां पे एग्जाम्पल है अभी। पानी होता है। मैम तब करेक्ट, सफिशिएंट रेन ना हुई हो। सबसे पहला एग्जाम्पल हम खुद है, और वो हम अभी वही डिस्कस कर रहे थे, हम सबसे ज्यादा कट कर रहे हैं, वहां पे ट्रीज नहीं बचे, रिवर के अंदर हम ऑलरेडी अपना जो भी कचरा है वो डाल रहे हैं, जो भी रिवर्स है उसको हम ऑलरेडी खाली कर रहे हैं, जो भी सोर्सेस है वो लिमिटेड है, पता है, अगर कंटिन्यूअसली उसको कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं तो भी वो इफेक्ट होगी होगी, खाली होगा ही होगा, ठीक है। सो कंजर्वेशन में हम तीन चीजें मेनली पढ़ेंगे कि कैसे कंजर्व कर सकते हैं, एक तो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है नेशनल पार्क, और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, प्रोटेक्टेड एरियाज क्यों रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम खुद कंट्रोल में नहीं है ना, इंसान खुद ही कंट्रोल में नहीं है, तो हमें लीगली वो रूल्स बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। जो भी प्लांटेशन है, कल्टीवेशन है, ग्रासिंग है, जो भी ट्रीज है, ठीक है, वहां पे ये सारी एक्टिविटीज ना हो, ओके, वो एक्टिविटीज बंद करने के लिए हमने, मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक लीगली वो एरिया बनाया जाएगा, अगर वहां पे ये एक्टिविटीज होगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाए, राइट। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. वाइल्ड लाइफ स्पेसिफिकली किसके लिए है, एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए। नेशनल पार्क आर रिजर्व फॉर व्हाट, दे आर द हैबिटाट्स फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल Animals. रिसोर्सेज अवेलेबल है, एनिमल्स खाली एनिमल के लिए नहीं है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ इज लिमिटेड टू एनिमल्स ओनली, बट नेशनल पार्क्स आर लिमिटेड टू, समझ लो कि वहां पे बहुत ही अच्छे माउंटेन्स है Species. जहाँ से बहुत ही वाइल्ड अच्छे से मैंगो मिनरल्स और एलिमेंट्स भी मिल रहे हैं, मैम, वाइल्ड और मैंगो वी डोंट वांट कि वहां पे इंटरवेंट हो ह्यूमन बींग्स का, तो वो नेशनल पार्क है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे एनिमल्स रह भी रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज से पार्क कोई भी तो हो सकता है, गवर्नमेंट के दो मैम, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है मैम। मैम जो भी उसमें मैम रूल्स मतलब कि कोई भी मैम चाहिए मैम तो गवर्नमेंट की अप्रूव चाहिए मैम। मैम अभी वो नेशनल Correct. में जाना है तो जूलॉजिस्ट के कोई स्टडी रिगार्डिंग ही जा सकते हैं मैम, उसके बिना नहीं Perfect. जा सकते। अगर आप साइंटिस्ट हो उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो तभी जा सकते हो, करेक्ट। बायोस्फीयर रिजर्व यानी क्या, बायो का मतलब है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, स्फीयर यानी क्या,
गोला, एक गोला, कौन सा गोला? जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रही है, तो वो कौन है? हमारा प्लेनेट अर्थ। तो उसके ऊपर प्लांट और एनिमल्स दोनों आ जाएंगे। अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। और बायोडाइवर्सिटी। दूसरा एक हो जाएगा कि वहां पे, जैसे हमें पता है कि इंडिया में वो एक इंसिडेंट हुआ था कि हमारे जो आइलैंड है वो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे किसी का जाना अलाउ नहीं है, और कोई रिपोर्टर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसको वो ट्राइबल जो लोग थे, ठीक है, जो कभी भी वहां से निकले नहीं है, उन्होंने उसे मार दिया, राइट। तो वो सारी चीजें प्रोटेक्ट करना और रिजर्व करना, राइट। नाउ विल स्टार्ट विद फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है, और कंट्री। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला, राइट, स्टेट यानी दैट राज्य, एंड कंट्री यू नो दैट। ओके, सो वहां पे तीनों रिजर्व हमारे पास, यहाँ पे पंचमढ़ी का बायोस्फीयर रिजर्व का एक चार्ट है। पंचमढ़ी, यू नो दैट हिल स्टेशन, राइट। वहां पे देखो, नीमगान, पंचमढ़ी सेंचुरी, पीपर, दिस ऑल आर द सेंचुरीज एंड डिफरेंट प्रोटेक्टिव एरियाज, जहां पे हम प्लांट्स, एनिमल्स और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, राइट। प्रिजर्व कैसे करते हैं? गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं। बोलो बोलो बोलो। मैम मैं ऐसा बोलता, आपने बोला कि नेशनल पार्क में कोई भी अलाउड नहीं है, लेकिन मैम जो हमारा गुजरात अलाउड में, बेटा, मैंने क्या बोला सागनी? अलाउड यानी क्या? अब जाके वहां पे हंटिंग नहीं कर सकते, है ना, शिकार करने नहीं जा सकते, आप वहां देखने जा सकते हो, आप उसको हार्म नहीं कर सकते, हाँ मैम, आपकी मर्जी वहां पे नहीं चलेगी, ये मैंने बोला, ठीक है। हाँ मैम और कायोटी प्रिकॉशन था ना मैम, जो राइनो रेस्क्यू में आया था मैम, मैम उसको भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद भी अप्रूव मिला था मैम। करेक्ट। और मैम रुद्र अपना सारा नॉलेज आज ही बांट देगा। हाँ ये मैम, अच्छी बात है, एक्चुअली ये अच्छी बात है, पता है, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना। और वो बस एक ही चीज होती है कि जब कोई, बस एक साथ सारे मत बोलो, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना। जरूरी नहीं कि आप अपने आप को लिमिटेड करके रखो इसी टेक्स्ट बुक से, है ना, कभी भी ऐसा मत करो। ओके, पर्सनली मैं भी यही बोलूंगी आपको। तो रुद्र जो कर रहा है वो परफेक्ट है बेटा, बस इतना है कि जब भी आप शेयर करो, आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब फ्लोरा और फोना क्या है? As the children walk around the biosphere reserve, मैम मैं they बताऊं? appreciate it. हाँ प्लीज। मैम फ्लोरा मीन्स मैम प्लांट्स एंड फोना, फोना मीन्स एनिमल्स। यहाँ पे वर्ड दिया गया फ्लोरा यानी फ्लोरल। फ्लोरल हम किसको बोलते हैं? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स कहाँ पे होते हैं? प्लांट्स पे। फोना, फोना वर्ड इज रिलेटेड टू हियर एनिमल को हमने दिया, ठीक है। तो ये सही वो example पर्टिकुलर है। रीजन, क्या मैम मतलब फ्लोरा मतलब कोई एक सीमित जगह का मैम फ्लावर जो आपने बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। तो फ्लोरा का मतलब यहाँ पे क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, देयर इज अ फ्लोरा एंड फोना। अब फ्लोरा का मतलब क्या है? सपोज इफ विल टेक एग्जांपल ऑफ एनिमल्स, टीक, मैंगो, जामुन, ये सारे डिफरेंट टाइप्स की ट्रीज है और प्लांटेशन है, जो हम जनरली कहाँ पे मिलते हैं? हमें फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, स्पेसिफिकली। अब देखो, पाइन ट्रीज हमें कभी गुजरात में मिलेंगे क्या? इजीली नहीं मिलेंगे। जनरली पाइन ट्रीज जो होते हैं, वो पाइन ट्रीज कहाँ पे मिलेंगे आपको? नॉर्दर्न रीजन में, है ना। नॉर्दर्न रीजन कहाँ पे? डेल्टा। जैसे आप देखोगे शिमला, मनाली, कुल्लू, इस साइड पे जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइट। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल दिया है पंचमढ़ी का, एक केस स्टडी दी गई है पंचमढ़ी की, ठीक है। पंचमढ़ी का जो बायोस्फीयर है, वहाँ पे कितने टाइप्स के वहाँ पे प्लांटेशन अवेलेबल है और एनिमल्स? तो ये एनिमल की लिस्ट है, ओके। तो डियर है, जैकब है, ठीक है, पेंथर, फोना, डिफरेंट टाइप्स के, लेपर्ड है, वाइल्ड डॉग ट्री है, ठीक है, मैम वाइल्ड डॉग्स है। मैम एक Right. डाउट है, हाँ, और मैम जो वाइल्ड मैंगो है मैम, वो इतनी रेयर और मैम क्यों इतनी स्पेशियस है मैम? तो सॉरी, वाइल्ड मैंगो मैंगो मैंगो, वाइल्ड मैंगो, हाँ। मैम वो क्यों इतनी स्पेशल है मैम और रेयर है मैम? तो जो गवर्नमेंट जो ऐसे ट्रीज मिलते हैं मैम, तो मैम उसको क्यों मैम वो ट्रीज को सेव करता है मैम? हाँ, ये कुछ ऐसा है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, आपने 7th स्टैंडर्ड में बेटा पढ़ा है कि सीड्स यानी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, दो टाइप के होते हैं। अब अगर हम सीड्स को प्रिजर्व करके रख लेंगे, ठीक है, तो वो सीड्स हम कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा है कि वाइल्ड, जैसे हमने शायद हमने डिस्कस किया था कि एक मैंगो है, राइट, वो मैंगो कुछ पर्पल शेड की जो हम हमारे गुजरात में उगा रहे हैं,
एक मैंगो कुछ किलोज में होती है और एक मैंगो कितने लेग्स में बिकती है। ये शायद एग्जांपल मैंने शेयर किया था मे बी, अगर आपको याद हो तो वो जो है वो वैरायटी हम बनाते हैं, कोई वैरायटी ऐसी होती है जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं, आर्टिफिशियल कॉम्बिनेशन होता है जो रेयर वैरायटी है ना, जैसे चंदन, एक तो वो लीगली हम यूज नहीं कर सकते, हम काट नहीं सकते और उगा नहीं सकते, ठीक है, वैसे ही वो रेयर है और बहुत ही उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा, ठीक है, उसको ग्रो करना। फिर अगर आप देखोगे तो एक और एग्जांपल है कैवियर। कैवियर आपने नहीं सुना होगा क्योंकि कैवियर जो है ना वो किसी फिश के अंदर उसके एग्स है, वो जनरली खाए जाते हैं और वो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं, जैसे कि Yes, ma'am. हाँ मैम, मैम और कोई स्पेशल सैफरन भी ओकेशन अच्छा पे एग्जांपल खाते मैम हैं। है। सुना है मैम, वो किसी स्पेशल ओकेजन में खाया जाता है। मैम वो भी मैम स्पेसिफिक सैल्मन के होते हैं। हाँ, ऑरेंज। तो इसलिए अब एंडेमिक स्पीसीज यानी क्या, मैंगो की भी बहुत सारे स्पीसीज टाइप्स हो गए, ठीक है। एंडेमिक, अब पेंडेमिक तो समझते ही, एंडेमिक क्या है ना। एंडेमिक यानी कैसी चीज है, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, वो हर जगह पे नहीं मिलेगी। जैसे अभी कीवी का कैसा है, कीवी हर जगह पे एक्सपोर्ट होता है बट फिर भी वो एक्सपोर्ट होता है ना, हम ग्रो नहीं कर रहे उसको। मैम सिर्फ न्यूजीलैंड में ही मिलता है वो। राइट, मैम जैसे कि मैम एनिमल्स में एग्जांपल दूं मैम, यस बेटा, यस, मैम पांडा, मैम जो भी करेक्ट, पांडा, मैम वेरी पांडा है गुड ना। एग्जांपल, यस, पैंडा, कोआला, ये सारे एग्जांपल, या फिर कैंगारू, राइट। कैंगारूज भी जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरियाज में लिमिटेड है। एल्पैका, लेमा ले लो, वो भी आपने स्टडी मैम, किया है रिप्रोडक्शन का। मैम हाँ, लाल मैम। चश्मा बंदर मैम सिर्फ वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, लाल करेक्ट, चश्मा वेस्टर्न बंदर। घाट में, या फिर तिब्बत में ले लो याक, ठीक है, ये सारे स्पेसिफिक एरिया में लिमिटेड है, उसका फ्रूट्स की तरह नहीं है कि कहीं पर भी हम उगा पाए, ठीक है। मैम तो मैम ये व्हाइट टाइगर, जो मैम द प्राइस होते हैं मैम जो जायंट पांडा की, मैम कोई भी चाइना वाला की कोई भी रिजर्व को और जू को दे रहा है मैम उसको बचाने के लिए मैम, तो हर एक पांडा का मैम ईच पांडा का 10 मिलियन चार्ज करता है। मैम वो लोग जो मैम एंडेमिक मैम, रेड अलग अलग जगह पे होते हैं ना मैम, क्योंकि मैम उनको ब्रीड करने के लिए एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है। right, so we are having one example here of a biosphere present in Bison कहाँ पे, पंचमढ़ी, okay, that पंचमढ़ी flora is a specific limited area we discussed, right, flora and fauna, so वहाँ पे giant squirrel, हमने स्क्विरल देखी है बट ऐसी स्क्विरल नहीं देखी है, ठीक है, जो सिर्फ वहीं पे लिमिटेड है, ओके। देन ये स्पीसीज की डेफिनेशन है, व्हाट इज स्पीसीज, इट्स अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन व्हिच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यानी जितने भी स्क्विरल्स की हमारे पास जितने भी उसके स्पीसीज अवेलेबल है वो सारे स्क्विरल्स। अगर हम ले लें लेपर्ड तो वो सारे जितने भी टाइप्स के लेपर्ड है वो, अगर हम ले लें लायन तो जितने भी टाइप्स है वो, टाइगर जितने भी टाइप्स है वो, ओके, और इसमें स्पैरो तो जितने भी टाइप्स है वो सारे, तो वो जो पूरा ग्रुप बनता है वो स्पीसीज है। दे कैन जस्ट इंटरप्रेट, दे आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग यानी ब्रीडिंग दैट इन बिटवीन दैट स्पीसीज, है ना। अगर स्क्विरल है तो स्क्विरल ही होगा और वहां पे कोई दूसरी हम एनिमल या ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर, राइट। मैम आपको पता है स्क्विरल की एक स्पीशीज है जो जिसे फ्लाइंग स्क्विरल कहते हैं, उनके विंग्स होते हैं और वो जल्दी से एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप भी कर सकती है। हम उसी फ्लाइंग स्क्विरल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके पास एक्चुअली में वो फ्लाई नहीं कर सकती, बट कैसा होता है जैसे पिकॉक और कुछ फ्लाइंग स्नेक का होता है कि वो ऊपर इजीली नहीं जा पाएंगे, पर जब ऊपर से नीचे आना हो ना तो उनके पास थोड़े से विंग्स नहीं, बट उनका जो मसल है ना वो चिपका हुआ, जैसे हमारे पास होता है, अगर आपने देखा हो तो पैराशूट जैसा नहीं, हमारे पास भी एक फ्लाइंग शूट होता है जो कनेक्ट करके रखता है हमारे हैंड और बाकी के बॉडी पार्ट को, ऐसे ही बॉडी पार्ट से वो फ्लाई करके नीचे आ सकते हैं। मैम जैसे मैम बैट के विंग होता है ना मैम, छोटी सी पतली स्किन, मैम वैसे ही मैम उनके हाथ और पैरों में मैम वो जो फ्लाइंग स्क्विरल होते हैं उसके विंग भी नहीं होते, वो उसकी छोटी सी पतली स्किन का लेयर होता है, इसीलिए वो ऊपर से नीचे जितने भी ऊपर से वो नीचे आएगा ना तो उसे कुछ डैमेज नहीं होगा, वो अपने वो खोल देगा अपनी स्किन को, थोड़ा फैला देगा। मैम एक मैम चिपकली है मैम, एंडेमिक है मैम, वो उड़ सकती है मैम, लेकिन मैम वो भी ऐसी है मैम उसका नाम ड्रैको है, ड्रैको। मैम अपने इंडिया में ड्रैको में जैसे, हाँ बेटा बोलो। मैम सदर्न हिल्स में मैम डिस्कवरी हुई मैम की मैम जो सबसे ज्यादा फ्रॉग्स की मैम स्पीशीज है मैम इंडिया में फाउंड होती है मैम, अभी भी वेस्टर्न घाट्स में मैम
Yes, बहुत सारी मैम अभी फाउंड करने की बाकी है अभी मैम बस मैम हिमालयस में एक मैम Visiting इतना cards में ऐसा नहीं मैम बेटा। बड़ा फ्रॉग मैम मिला मैम, हाँ मैम, एक बिल्कुल बहुत न्यू बड़ा स्पीशीज फ्रॉग मैम। जो पूरे बॉल के साइज का है, बड़े। हाँ मैम। मैम और मैम आउट ऑफ इंडिया मैम अमेरिका टाइप और यूके में मैम एक रिवर में कि मैम मैम उसके ह्यूमन अंडे टाइप भी फेस, दिखाए मैम। मैम ह्यूमन टाइप फेस कोई फिश फाउंड हुई है मैम। और मैम मैम उसके ऐसा 2 भी एक वीडियो है। फ्रॉग है मैम जो है ना मैम अंडा नहीं देता मैम, वो मैम डायरेक्ट ही मैम है ना वो देता है मैम, एक स्पीशीज है फ्रॉग, बेबीज देता है मैम, वो मैम अंडा नहीं देता। और मैम ऐसे क्लीचर की स्पीशीज भी है जो जो चिल्लाती है ना, तो उसके भी ऐसे पतली स्किन ऐसे खड़ी हो जाती है दोनों साइड, ऐसे ईयर या ऐसा कुछ होता है मैम उसका भी। हाँ मैम वो पानी हाँ में मैम पता है मैम, एक दौड़ता मैम ऐसा इतना बड़ा मैम रेट आता है जिसका मैम है ना समर में नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही विंटर आएगा मैम उसका है ना पूरा शरीर खड़ा हो जाता है मैम, जितने भी बाल है पूरे विंटर खड़े रहेंगे मैम। Good, क्या good, हुआ good. मैम? Okay, good, very good. So now the next portion is wildlife sanctuary, right? Wildlife sanctuaries are the specific area, we can say. We are going to discuss the case study of Panchmadi only, right? Panchmadi wildlife sanctuary only. So we'll take that example. There are some threatens, okay, for their wild animals or plants like a white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed python, okay, or pink-headed duck, gharial. Gharial is different from crocodile, right? Then python, rhinoceros. Generally, we are killing them for a specific valuable resource from them, and this activity we need to stop. So Indian sanctuaries have a unique landscapes, and we are having that. You know that it's not only one type of climatic or weather condition, and also the geographical condition, right? So we need to protect it, whatever variation we are having. So we are doing it in form of what? Wildlife sanctuary, by protecting all of them. अब वो wildlife sanctuaries में examples कौन-कौन से, right? Suppose if we take example of any wildlife sanctuary that you are aware of. नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Okay, National Chambal. Chambal Wildlife Sanctuary is related to what? मैम उत्तर Chambal प्रदेश is में very famous for white color chandan. Okay, fine. After that we are having national park. So what is national park? वहाँ पे बाकी सारे natural resources, plants and animals सबको protect किया जाता है. मैम काजीरंगा। जैसे मैम काजीरंगा। काजीरंगा। मैम इंडिया का फर्स्ट कोई ऐसा पार्क जो मैम है ना ये करता है वो मैम काजीरंगा ही है मैम। मैम सासन गीर नेशनल पार्क। Yes बेटा, correct, correct. You are also correct. मैम एक क्वेश्चन पूछूं? Yes. मैम जो अपने इंडिया में सॉरी इंडिया नहीं मैम, गुजरात का जो नेशनल एनिमल मैम वो कौन से कंट्री का सिंबल है मैम? Sorry, national. मैम जैसे Animal हमारे को? गुजरात का नेशनल एनिमल लायन है मैम, तो कौन सी और कंट्री का मैम ऑफिशियल नेशनल एनिमल है मैम? सेम एनिमल। टाइगर। ये बोल रहे हो आप? टाइगर है ना हमारे दूसरे इंडिया कौन का सी कंट्री में नेशनल सेम एनिमल है जो नेशनल है, वो बोल रहे हो बेटा? अफ्रीका हो सकता है उसका। मैम वो ये पूछा है कि पर्टिकुलर स्टेट का एक मैम वो जो मेन एनिमल होता है ना, अच्छा वो पूछा है मैम। ऐसा कौन से मैम आई वांट टू से समथिंग। ऐसा हाँ पूछा है। बहुत सारे। हाँ बेटा प्लीज बोलो बोलो, सब बोलो सब। मैम सबका अभी निकल जाएगा। मैम मैं ये कह रही हूँ कि टाइगर को नेशनल एनिमल इससे बनाया गया है कि क्योंकि पहले ना वो एकदम से इंडेंजर्ड हो गए थे। करेक्ट, बहुत ही कम तादाद में थे, फिर अभी धीरे तो धीरे मैम क्योंकि तो मैम उसे क्योंकि- सेव करने के लिए उसे नेशनल एनिमल बना दिया। राइट राइट। अभी तो मैम अच्छी तादाद पूछ है रहे थे मैम इंग्लैंड की रुद्र, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे या ये पूछ रहे थे कि और कहाँ पर वो लायन भी है? ठीक है चलो, गुड गुड। नहीं मैम कम से कम 15 लाख टाइगर तो हो गए मैम इंडिया में। मैम ये बोल रहा था मैम कि गुजरात का जो नेशनल एनिमल मैम लायन है, तो मैम वो कौन सी दूसरी कंट्री का लायन जो नेशनल एनिमल है मैम? अफ्रीका। हाँ मैं वही बोल रही थी, अफ्रीका। मैम इंग्लैंड का है। सॉरी मैम इंग्लैंड का लायन नेशनल एनिमल है। लायन नेशन, वो लायन वो एक सिंबल आता है उसके ऊपर से आप बता रहे हो? लायन का नहीं नहीं मैम ऑफिशियल है। ऑफिशियल बता रहे हो आप? ठीक है देन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है मैम और नेपाल का काऊ है। क्या है बेटा? मैम नेपाल का गाय है, बहुत मोटी मोटी गाय। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं अभी कुछ स्टार्ट करूं, वरना
हाँ मैम, You can करो take मैम। over. बेटा आप ही बोल रहे हो बीच में, क्या करो? मैम सागने की बोलते हैं। मैंने कब बोला कुछ, मैं तो कब से चुप चलो हूँ। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, जैसे कि आपने बेटा बात की अभी टाइगर वाली, तो वो सही है कि प्रोजेक्ट टाइगर लिया गया था क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा तादाद में उसकी हंटिंग हो रही थी, राइट? तो वहां पर यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, स्टार्ट विद दैट एग्जांपल। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड द फाइनेस्ट इंडियन टिक वुड, ओके, इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। टिक वुड जो जनरली होता है, you know that the Gujarati term is khakro and all, right? The trees are available mainly in that forest region. So there are more than 100 national parks in India. इसकी जरूरत है हमें, that's why we are having more than 100 national parks, right? So rock shelters are also found inside the Satpura National Park. Rock shelter यानी क्या? जैसे caves बनी होती है rocks की, right? These are evidence of prehistorical human life in these jungles. Prehistorical यानी history में हमने start किया था कहाँ से रहना? Caves, right? Tribal area, tribal region. So rock paintings are found in this shelter. On that 55 rock shelter have been identified in Panchmari Biosphere Reserve. यानी सबसे पहले पेंटिंग, यानी ये कुछ ऐसा है कि जब हमारा एडवांस फॉर्म नहीं था, है ना, ट्राइबल फॉर्म, जहां से आज तक हम एडवांस लेवल पे पहुंचे, at the time we were using that, we were preparing those paintings on a rock, right? And we got that proofs, right? And here we can see that it's in form of what? Painting, rock painting, right? So this is regarding that national park. Now Project Tiger is important right now. Okay, case study. What is the case study? We can understand that really in real life whatever we are learning, we can apply it in the real life or not. Okay, is there something was happened, right? Or we can say that we can relate it with that past or not. So we are having this Satpura Tiger Reserve area that was written by, or we can say that launched by government to protect the tigers, and that objective of this project was to ensure that survival, सिर्फ उसको प्रोटेक्ट नहीं करना, उसको सर्वाइव करके आगे उसकी जनरेशन बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, राइट? दैट वाज द प्रोजेक्ट टाइगर. So tiger is one of the many of the species we can say it's slowly disappearing, okay, from this forest. So Satpura Tiger Reserve is a unique project that we can say it sense that significant increasing in population of this tigers, है ना? अभी तो वो तादाद अच्छी खासी बढ़ गई है, right? Another example is once upon a time we can say some of the animals like lions, elephants, wild buffaloes. हाँ, wild buffaloes are also a very common example. Okay, बारहसिंगा, जिसके सिंग बहुत ही, आपने देखे होंगे कि ब्रांचेस जैसे ट्रीज के होते हैं, राइट? वो बारहसिंगा, जैसे यहाँ पे उसका एक ये है वाइल्ड बफेलोज, नॉर्मल बफेलो नहीं है ना, अगर उनके साथ हमने पंगा लेने की कोशिश की दैट, और ये है बारहसिंगा, ठीक है? तो ये जो एनिमल्स है, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? बट ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क, वो टाइगर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, राइट? उस नंबर्स आर डिमिनिशिंग. नाउ एंडेंजर पे आते हैं, एंडेंजर एंड एक्सटिंक्ट, जो ऑलरेडी डिमिनिश हो रहे यानी कम हो रहे, ठीक है? अभी भी वो है बट वो बहुत जल्दी कम हो रहे उसके नंबर, तो वो हो जाएगा एंडेंजर. एंड एक्सटिंक्ट यानी क्या? जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, राइट? सो एक्सटिंक्ट मींस व्हाट? दे आर ऑलरेडी disappeared from this planet. Okay, endangered यानी they are diminishing in their level, यानी numbers of them. मैम उसके 3 पार्ट भी होते हैं मैम. जो पहला पार्ट होता है मैम about to extinct, मैम दूसरा पार्ट में highly risk मैम है, और तीसरा मैम highly the most risk to be extinct. Okay. मैम उसमें हाई रिस्क में पोलर बेयर आ रहे हैं मैम, अलास्का में polar bear, yes Vinay, yes polar bear is there, and because you know that right now very at fast pace it's melting, right? So for them, those who are living, penguins still can survive, but for polar bear it's not easy like penguin. Now penguin can survive. Some of the regions you will see that whole show is there on Netflix regarding that penguin group, okay, and there you will see that they are living with human beings, है ना? वो पूरे सिटी एरिया में वहां पे वो पेंगुइन्स इतने वहां पे डोमिनेट कर चुके हैं that you need to take care, और वही अच्छा है एक तरीके से, है ना? अगर वो डोमिनेट करने लग जाए तो एटलीस्ट हम किसी जगह पे ठिकाने पे रहेंगे, है ना? एक्चुअली हमें कंट्रोल. मैम देयर इज अ मूवी ऑफ पेंगुइन्स, मैम बिकॉज़ मैम द रीजन पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर, वो मेडागास्कर वाला वो नहीं, वहां पे कंजर्वेशन की बात नहीं होती है, ठीक है? मैम द रीजन इकोसिस्टम पे आते हैं. व्हाट इज इकोसिस्टम? Ecosystem will involve everything.
all those natural things available and living things available on this planet. ठीक है, वो सारे plants, animals, microorganisms और वो जिस एरिया में हैबिटेट में और वो ज्योग्राफिकल कंडीशन जो वेदर क्लाइमेट है, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है? इकोसिस्टम। चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई झरना हो, ठीक है, या फिर वो minerals हो, and living organisms, they are going to together make this ecosystem, right? So we already discussed how we can protect and how we can find out the solution and what are those problems regarding ecosystem and environment. अब रेड डेटा बुक क्या है? क्योंकि उसका नाम रेड है यानी कुछ डेंजरस है। डेटा यानी वहां पे कोई डेटा रखे जो डेंजरस हो सकते हैं, बट कैसे डेंजरस? कि ऐसे डेटा है जहाँ पे ऑलरेडी एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट फॉर्म में या फिर ऐसे एनिमल्स का लिस्ट और प्लांट्स का लिस्ट वहां पे बनाया गया है जो अभी रेड अलर्ट पे है, तो हमें उसको बचाना पड़ेगा। ठीक है, वो रेड डेटा बुक है। जनरली बुक्स होते हैं बड़ी, वहां पे उसको रेड डेटा बुक इसलिए हाईलाइट करके लिखा है ताकि वो समझ में आए कि ये रेड अलर्ट वाला पीस है, राइट? अब माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन यू ऑलरेडी नो व्हाट इज माइग्रेशन, है ना? जैसे विंटर सीजन आप देखोगे कि ईस्टर्न रीजन वेस्टर्न रीजन में स्टार्ट होगा, तो वहां से बहुत सारे बर्ड्स वहां से माइग्रेट होके इस साइड पे आए विंटर सीजन में, राइट? तो ऐसा क्यों करते हैं? माइग्रेशन क्यों होता है? टू सर्वाइव, ओके, फॉर सर्वाइवल पर्पस दे आर गोइंग टू माइग्रेट टुवर्ड्स द जहाँ पे वो अच्छे से रह पाएंगे, राइट, कंफर्टेबल, जहाँ पे उनको खाना मिलेगा और अच्छा वेदर मिलेगा। वंस देयर विंटर सीजन विल पास, अब वो फिर से अपने वही उसी जगह पे चले गए, एंड दैट इज नोन एज माइग्रेशन, है ना? अभी तालिबान वाला जो केस चल रहा है, तो वहां पर से यहाँ पे और बहुत सारे अरब कंट्रीज में वो लोग क्यों भाग रहे? बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव, वहां पे रहना और जीना वो डिफिकल्ट हो रहा है, सर्वाइवल इजी नहीं है, राइट? It's very hard and difficult life if you are living there under the supervision of Taliban. उनकी जब मर्जी जो चाहेगी वो कर लेगी, है ना? हम वो वर्ड कौन सा यूज करते हैं बेटा? रेफ्यूजी, जो पर्सन वो वहां से माइग्रेट होके आ रहा है ना? माइग्रेशन हम इमिग्रेशन वर्ड भी यूज करते हैं जब जो लोग अब्रॉड जाते हैं, राइट? तो माइग्रेशन, यस बेटा, migration of bird is also known as bird migration. यस बेटा, बर्ड माइग्रेशन ही सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मैम जो बर्ड है मैम, साइबेरियन बर्ड है मैम, जो साइबेरियन बर्ड, राइट? यस मैम, वो ये आपने वेदर एडेप्टेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, ये सारे एग्जांपल्स। साइबेरियन क्रेन के अलावा भी फ्लेमिंगोस और बहुत सारे और भी बर्ड्स आते हैं विंटर सीजन में यहाँ पे, हमारे ग्रासलैंड में, राजस्थान में, नर सरोवर में, राइट? मैम पंजाब में बहुत रेयर तरीके के मैम बर्ड्स आते हैं मैम, पंजाब में सबसे अच्छे बर्ड्स आते हैं मैम। मैम ये जो माइग्रेशन होता है सुल्तानपुर, यस बेटा, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हाँ, में जो माइग्रेशन होता है, करेक्ट करेक्ट बेटा, सुल्तानपुर इज करेक्ट आंसर। हाँ बोलो। मैम माइग्रेशन सिर्फ बर्ड्स लोग ही करते हैं या मैम कोई मैमल्स भी करते हैं? लायन करते हैं, हाँ, मैमल्स भी करते हैं। देखो सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप देखोगे कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल नेचुरल फिनोमेनन में हमने डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक से पहले ये सारे ऑर्गेनिजम्स को, ये एनिमल्स को पता लग जाता है, तो बड़ी तादाद में ये चाहे वाइल्ड बफेलोज हो या फिर चाहे वो जिब्रास हो या जिराफ हो या फिर ले लो अंडर वाटर कोई व्हेल का पूरा या फिर कोई भी एक टाइप की फिश, वो एक जगह से दूसरी ऐसी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो सेफ हो। अगर हम अर्थक्वेक की बात नहीं कर रहे हैं तो वो पानी का नीचे का जो करंट होता है, तो अगर वहां पे ठंड, जैसे अलास्का जैसा रीजन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो वो ऐसे वाटर करंट पे नजदीक में जाते हैं जहाँ पे वाटर करंट थोड़ा सा वार्म, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्ड्स के केस में, इंसान से लेके हर एक ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, राइट, वहां पे माइग्रेशन के चांसेस है। ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे कन्वीनियंटली आपको सारी चीजें अवेलेबल हो, ठीक है, वो माइग्रेशन है। और माइग्रेशन के लिए नेचुरली उनके पास कंपास बॉक्स पड़ा है, ठीक है, कंपास बॉक्स यानी यहाँ पे कंपास जो हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, जनरली हम यूज करते हैं गूगल मैप, पर उनके पास वो इनबिल्ट सिस्टम है जो किसके साथ रिलेटेड है? ग्रेविटेशन फोर्स एंड मैम सबसे ज्यादा एलिफेंट माइग्रेट करता है मैम, क्योंकि जो उनका लीडर होता है मैम, तो एलिफेंट मैम, फीमेल एलिफेंट मैम, उसके स्टोर में जब वो छोटे होते हैं मैम, तभी से उनको अलग अलग जगह पे जाते हैं मैम, जब ड्राउट होता है। उससे भी ज्यादा नेविगेटिंग सिस्टम अच्छी होती है बर्ड्स और व्हेल की, और उससे ज्यादा भी है डॉल्फिन। इन सब के नेविगेशन सिस्टम और जो सोनार और जो एक डिफरेंट वेव्स वो यूज करते हैं, ठीक है, उनको सिक्स सेंस नहीं होते। हमारे लिए सिक्स सेंस यानी क्या?
जो हमारे बस के बाहर की बात है, हमें वो पता नहीं लगता, पर उनके पास वो सिक्स सेंस है। कैसे पता लगता है? वो सारे वाइब्रेशंस है ना, जैसे हमने बोला था कि कोई सुनामी आ रहा है, उस टाइम पे बहुत दिन पहले वहां पे ये माइग्रेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कॉमन नहीं है। सीजनल माइग्रेशन होता है, वो कॉमन है, पर ये वाला माइग्रेशन जो कॉमन नहीं है, या अर्थक्वेक आने वाला हो, तो ऐसी कंडीशन में या फ्लड, या फिर देखोगे कि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट जब फायर। अहमदाबाद में आया था मैम, तब तो वहाँ पे कोई स्ट्रीट डॉग मैम, उसके 1-2 घंटे पहले मैम वहाँ पे कोई काऊ मैम, कोई भी स्ट्रीट में उसे दिख नहीं रही थी मैम। दिख रही थी मैम तो कोई उनके शेल्टर के नीचे दिख रही थी मैम, जहाँ पे वो सेफ लगे मैम, वैसी जगह पे। करेक्ट बेटा, फाइन, चलो ठीक है, ओके, यहाँ तक रखते हैं। आई थिंक आज के लिए ऑलमोस्ट इस चैप्टर में इससे ज्यादा नहीं है कुछ, बट नेक्स्ट सेशन में हमें रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे पहले टेक्सचुअल एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। फाइन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स एक बार देख लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना बेटा, ठीक है? कुछ कुछ वर्डिंग्स है जो याद रखने, ऑलरेडी यू आर अवेयर अबाउट इट बेटा। मैम कुछ होमवर्क है मैम मेरे को चैप्टर एक में? चीज बोलनी है। सॉरी, मैम इस चैप्टर में कोई होमवर्क है मैम? ये वाले चैप्टर में होमवर्क जब हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तभी हम देखेंगे, ठीक है बेटा? मैम मैम ओके मैम। मैम फिर मेरे को एक चीज बोलनी, मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था मैम कि कपल जो ट्री उगाते मैम, अदर वो उगते शेप ऑफ चेयर में होती है मैम, मैम उनकी प्राइस मैम मिलियंस में होती है मैम, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। हाँ राइट, बहुत ऐसे रेयर एग्जांपल्स है। राइट मैम, यस बेटा। मैम एक ऐसी जगह है कि एक इंसान को 10 ट्रीज तो उगाना ही पड़ता है। ये अच्छी बात है ना? मैम एक ये अच्छी बात है। कंट्री में ऐसा होता है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। फाइन, चलो ठीक है, यहाँ तक रखते हैं बेटा। विल सी यू नेक्स्ट सेशन। ओके मैम।